This is All India Radio. In Spotlight, now we bring you a special program on Aero India 2021, the biggest aero show in Asia. The curtains have come down on the 3 days mega Aero India show in Bengaluru today with a positive note that India will have a formidable presence in the global defense sector market. The show clearly declared to the world its intentions of becoming a Atmanirbhar Bharat. The President of India, Ramnath Kovind, graced the valedictory function of the Aero India show today. This is for the first time that a president has participated in the Aero India show. I am delighted to be here today among you all for the valedictory ceremony of the 13th edition of Aero India and to witness the grand international Aero show. The participation of defense ministers and senior defense officials from several nations and many business leaders from around the world has added a significant value to this event. I am sure that the delegates would have experienced the vibrant energy of a new India and witnessed our vast capabilities as well as many opportunities that our country offers in the defense and aerospace sectors. I am also sure that this event provided the participating nations and industries an ideal platform to exchange ideas and forge partnerships. Ladies and gentlemen, the past year has been a time of unprecedented hardships due to COVID-19. Its adverse impacts have been felt on all walks of life over the world. Despite the challenges posed by the pandemic, I am happy that Aero India 2021 has been organized successfully. It has been held without compromising its spirit while following the COVID-appropriate norms. Here I want to praise the courage and bravery of the Indian Air Force and our pilots for displaying exemplary professionalism in protecting India's skies and strengthening the country's defense. Aero India 2021 has been an unprecedented success. I am told that high-level delegations from 43 countries and exhibitors from 530 companies have participated in the event. Many more across the world got associated with the event virtually, which is the world's first mega event of this kind to be held in the hybrid format. Raksha Mantri Rajnath Singh launched Asia's biggest event under COVID safeguards by passing an order to HAL to produce 83 homegrown light combat aircraft LCA Mark 1A for the Indian Air Force. Speaking on the occasion, he said that India offers multifaceted opportunities to the world fora in the field of defense and aerospace sector. Friends, the Aero India 21 will display the vast potential for India and the multifarious opportunities that our country offers in the field of defense and aerospace sector. It also promises to be the world's first ever hybrid aero and defense exhibition. In order to maximize the reach and participation, the event is being conducted in a hybrid format with a concurrent virtual exhibition which will integrate the seminars, business-to-business interaction, product display, etc. It will be not incorrect to say that Aero India 21 has truly gone digital and global. I have been informed that about 540 exhibitors, including 80 foreign companies, defense ministers, delegates, service chiefs, and officials from more than 55 nations are participating in this event. It reflects the growing optimism of the global community and the level of confidence felt in the emerging capabilities of India. The gracious presence of defense and foreign affairs ministers, service chiefs, officials, and delegates who have arrived from various countries and far-off places has added a greater significance in value to the event. I am personally grateful to you all. I express my deep sense of gratitude to the defense ministers from Maldives, Equatorial Guinea, Iran, Comoros, and Madagascar who have joined this show in person and many others who are joining virtually. I also recognize the presence of CEOs
of global and Indian aerospace and defense measures. Friends, India today offers a unique opportunity in defense and aerospace manufacturing. This opportunity comes as a sangam of rising demand, greater innovation, conducive policy, and a maturing ecosystem in defense and aerospace manufacturing sector. We have taken many steps to strengthen our security apparatus recently. Domestic manufacturing of bigger and complex defense platforms has now become the focus of our policy under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. We plan to spend $130 billion on military modernization in the next 7 to 8 years. My brothers and sisters, the sector has been further opened for foreign sector participation, and we are encouraging foreign OEMs to set up wholly owned subsidiaries or enter into strategic partnerships with the Indian companies. This event would provide the participating nations and industries a platform towards forging such collaborations in the aerospace and defense sector. The Aero India show was enriched by flypast by fighter aircrafts and helicopters designed and developed within the country. The aerobatic teams of Indian Air Force comprising of Surya Kiran aircraft and Sarang helicopter team created a symphony in the air by performing together for the first time in an air show. It's the time for some zip, zap, zoom as we're going to present to you the Surya Kiran aerobatic team and Sarang helicopter display team. And here they come with the surprise. Ladies and gentlemen, put your hands together for Sarang helicopter display team. The Sarang team is maintaining wine glass formation while raising a toast on this momentous. Hindustan Aeronautics Limited will be delivering the first of 83 LCA Mark 1A 4th generation aircraft by March 2024. The Chairman and Managing Director of HAL, R. Madhavan, has informed that production of LCA Mark 1A will begin in 36 months' time. LCA, as per the contract, we have to start delivery by 36 months from T0, that is today. So, we will be doing by March 24, the first delivery. The first year, of course, the delivery will be only probably 2 aircrafts or something, which will be ramped up to 16. The total supply time post the first delivery is 6 years. So that makes it the total project timeline for 9 years. So we will try to reduce it to somewhere around by 1 year also at the end of the project. But the first delivery starts from March of 24. That is 3 years from now. As of today, 463 vendors are involved, both MSMEs and bigger companies involved in that. Major, if you talk about your Tier 1 suppliers, there are some 5 major. What we are talking about is L&T, WEM Technologies, those who are giving us the structures. This number, we expect that will go up to at least 550 to 600, somewhere in that range by the end of this, because more and more MSMEs will be coming in and sitting in because the numbers are higher. So that is the numbers involved. And as far as the order is concerned, if you remove the tax part of it, and the order is worth about 36,000 crores. So out of which somewhere around 6,000 crores goes directly to the MSMEs. And another 3,000 through, because we are also supplying the ground support equipment and other things, so that another 3,000 is expected to go towards that for the Indian partners. So that's about it. Remaining, the major component still continues to be the material part of it. So as long as we are still procuring it from foreign countries, that is why we are selling that indigenous content is about 52%. This is something that we'll have to see how we can increase the indigenous content in the raw materials. So in that case, there will be more indigenous content. That is how we are planning that we will improve it to around 65%. Provided some of the other vendors who are now in Tier 2, Tier 3 come into Tier 1 status and give us systems and LRUs and finished units. This is what the plan is.
Raksha Mantri Rajnath Singh had released the new Revision of Design, Development, Protection of Manufacturing of Military Aviation Stores during the first day of Aero India event. The DG of Aeronautics Quality Assurance, Mr. Sanjay Chawla, spoke exclusively to AIR News on the new features of this revised policy. DGAQA, that is Director General Aeronautical Quality Assurance, are providing quality assurance and final inspection clearance for all the military aviation stores in our country, be it Army Aviation, Naval Aviation, Coast Guard Aviation and Indian Air Force Company. Honorable Raksha Mantri was kind enough to release a new revision of the DDP MAS document, that is Design, Development, Production, Manufacture of Airborne Stores, which is the main governing document for certification as well as quality assurance of military aviation stores in the country. One new feature which yesterday Honorable Raksha Mantri has released is, up till now, the Indian industry were waiting for the orders and then they were getting the certification and quality assurance coverage. With the new policy, which is also part of the DAP, Defence Acquisition Policy, and the major thrust is on Atmanirbhar Bharat as well as on the export. So with this, without having any firm orders, the Indian industry can start developing stores at their own, looking for Indian customers as well as customers from all over the world as the export market, and they can approach DGAQA for providing quality assurance coverage, and we can evaluate these items. We will test it, inspect it as per the governing standards, and if they are meeting all the requirements, the industry will be given a certificate for fit for military use. With this certificate, they can approach the world market and those items can be supplied to other defense forces with our inspection coverage on request basis. At the same time, this will also hasten up the process that without waiting for order, as and when they get order from Indian armed forces, be it Indian Army, Navy, Coast Guard, immediately, since these items have already been evaluated, as immediately they get the supply order, immediately they will be able to supply. This will go a long way in filling our requirements of Atmanirbhar Bharat, and we will be able to achieve this self-sufficiency, the complete Atmanirbhar in our military aviation stores in a very short time. The test pilot of HAL, Group Captain H.V. Thakur, spoke to AIR News on his experience of flying made in India fighter aircrafts and helicopters. I fly all the aircraft which are made in India. I fly Tejas, Kiran, HTT. I am happy to get rides on ALH very often, and all the mainstream fighter aircraft of Indian Air Force like Mirage 2000, Su-30, Jaguar, Rafale. I haven't got a chance to fly, but I fly all the aircraft because I am a test pilot. Even presently I am flying, and even in the morning I was flying my bird, which is the IJT, which is going through a challenging phase, but we are overcoming that challenge. An aircraft like Tejas or an ALH is why loved by pilots in the field, because it does exactly what the pilot wants him to do, sitting in India, an Indian Air Force person. The Uttar Pradesh Industries Minister Satish Mahana spoke to media persons on the sidelines of Aero India show on UP Defence Industrial Corridor project. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जिस समय घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2018 में करी, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया आयाम प्रारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 6 नोड्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ, हमने सभी जगह पे लैंड एक्विजिशन का काम प्रारंभ किया, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हम डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से बहुत काम हमारा प्रगति पर। अलीगढ़ में लगभग हमारे पास 50 हेक्टेयर से ज्यादा, लगभग 125 एकड़ से ज्यादा लैंड हमने अलॉटमेंट कर दिया डिफेंस इंडस्ट्रीज को, और भी उसके नाते से बहुत सारी इंडस्ट्रीज अब इंटरेस्ट शो कर रही हैं और उनके लिए भी हम लैंड एक्वायर करने के लिए स्थिति में हैं। हमारी सरकार ने एरोस्पेस पॉलिसी की भी घोषणा करी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हम बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रहे हैं। मैंने अभी और भी लोगों से बातचीत करी है जहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, हमने 25% लैंड सब्सिडी दे रहे हैं, 10% तक उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी अप टू द लिमिट ऑफ 10 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं, 100% स्टैम्प की छूट दे रहे हैं, और बहुत सारे उनके जो हम लैंड देंगे उनको डिमार्केट करा के उसको फेंसिंग करा के देने की हमारी बात है। Hence this year, the 13th edition of Aero India show concluded at a high note. Sudhindra for Spotlight program on Aero India show. You were listening to a special program on Aero India 2021, the biggest aero show in Asia. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our website newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com.
ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए आगामी इंडिया टॉयज फेयर 2021 के संबंध में गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षित शाह से आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या की बातचीत। नमस्कार। दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया टॉय फेयर में गुजरात के अनेक टॉय उत्पादक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन देश की एकमात्र गुजरात के गांधीनगर स्थित चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी इस टॉय फेयर में न केवल हिस्सा लेगी, लेकिन अपना विशिष्ट योगदान भी देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2009 में उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में स्थापित देश की एकमात्र चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री हर्षद शाह ने देश में टॉय इंडस्ट्रीज और इंडिया टॉय फेयर के बारे में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि भारत में जो ये खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उसके जो डेवलपमेंट के लिए उसमें भारत का योगदान बढ़े, उसकी दिशा में जो काम हो रहा है, खास करके जो गुजरात की जो आपकी जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है उसमें जो योगदान करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो खिलौनों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खिलौने जो हैं केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। जो भी उपकरण, जो भी साधन ये कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, इवन 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो भी सिखा सकते हैं, वो सभी उपकरण खिलौनों के व्याप्ति में ले लेना चाहिए, और हम लेते हैं, क्योंकि वो आनंद से वो टैलेंट की ओर ले जाने वाले हैं, आनंद से वो कुछ निर्माण की ओर, सर्जन की ओर ले जाने वाले उपकरण हैं। और जो खिलौनों का शास्त्र जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी ने जो हमें समझाया है, 30 अगस्त को जो उन्होंने मन की बात में ये बात बताई है, उसके बाद हमारे कई सारे मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, गुजरात की सरकार, हम चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी सब बहुत सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसमें कई सारे वेबिनार हैं, कई वर्कशॉप्स हैं, और सभी प्रकार के प्रयत्न हम टॉय इनोवेशन के लिए कर रहे हैं। हमने हमारी यूनिवर्सिटी में तो एक डिपार्टमेंट ऑफ टॉय इनोवेशन खड़ा कर दिया है, और उसमें अभी तो एक प्रोफेसर हैं, मगर दूसरे 2 प्रोफेसर हम उसमें रिक्रूट करने वाले हैं। तो सेपरेट डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड टॉय क्रिएशन। दूसरा हम जो करने वाले हैं, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी वो टॉय हाउस एक बना रहे हैं, और टॉय हाउस में करीब उसको बनने में शायद 1 साल लग जाएगा, मगर हमारे ही परिसर में जो टॉय हाउस बनेगा उसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग, फिर टॉय टेस्टिंग, टॉय लेबोरेटरी होगी, टॉय लाइब्रेरी होगी, और चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा, टॉय म्यूजियम भी होगा, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक अच्छा विस्तार होगा, चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा। तो ये जो सब प्रयत्न हैं, आखिर तो हमें देश के एक बड़े अर्थतंत्र में हमें जोड़ने वाला काम है। देश की जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक बात जो है कि भाई हमारे पग पर खड़ा रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। खिलौनों के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर क्यों न बने। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो 6,53,400 करोड़ की इंडस्ट्री है विश्व की, जिसमें चाइना, यूएसए, यूके जैसे देश का बहुत बड़ा रोल है, मगर भारत का रोल कितना है, तो 4,000 करोड़ का केवल। तो भारत यदि 0.16% ही इसमें प्रदान कर रहा है अभी, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे जो कई जो देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कॉरपोरेट बॉडीज हैं, इन सब लोगों के साथ मेरे ख्याल से मंत्रालय संपर्क में है हमारे, और वो भी सब इसमें जुड़ने वाले हैं, ऐसे समाचार मुझे प्राप्त हुए हैं। और ये बहुत अच्छा काम होगा कि हमारे देश की प्रजा, हमारे देश के बच्चे हमारे ही खिलौने से, इंडिजिनस मटेरियल से बने और देश में बने खिलौनों से खेलेंगे और सीखेंगे। अच्छा सर, आपने जो भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में जब बात किया, ये टॉयज इंडस्ट्रीज के बारे में जो बात की, उसके बाद इसके ऊपर बहुत फोकस बढ़ गया है पूरे देश का। आप कुछ सर बता सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री के मन में जो ये टॉय इंडस्ट्रीज का ख्याल आया, वो किस तरह से आया? चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी से उसका कोई विचार विमर्श हुआ था, तो उसके बारे में कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपकी कोई अनुभव है तो बताइए। वैसे देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे,
और तब से वे बच्चों के बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, क्योंकि आखिर तो बच्चे जो है वो भविष्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, वो देश के सूत्रधार होने वाले हैं। इसलिए सर का फोकस पहले से ही यह रहा है कि बच्चों को अच्छी तरह से विकसित किया जाए, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह से उनको सज्ज किया जाए। इसके लिए तो उन्होंने इस चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है सब, और 2009 में जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तब से यूनिवर्सिटी भी अपने इस कार्यों के लिए कार्यरत है, सक्रिय है। और अभी जो माननीय वड़ा प्रधान जी ने हमें बताया है, जो दिशा दी है, उसके कारण बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खिलौने अभी देश में बनेंगे। डिजाइन वाले डिजाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और पूरी टेक्नोलॉजी के साथ मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इन सभी क्षेत्रों में ये शुरू हो गए हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और एनआईडी खास तौर पर, ये सब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं टेक्नोलॉजिकल ज्ञान देने वाली, वो अपने विद्यार्थियों से ये काम करवा रही है। अब गुजरात में देखिए तो हमारे जो शिक्षा के अग्र सचिव हैं माननीय अंजुबेन शर्मा, उन्होंने आई हब के नाम से एक अच्छा काम जो शुरू करवा दिया है। वो आई हब में भी काफी काम हो रहा है। SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम, SSIP के जरिए कई संस्था अब इस कार्य में इनिशिएटिव ले रही है, और अभी जो भी निष्कर्ष होगा आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीनों में या तो जून महीने तक मेरे ख्याल से काफी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। सर, दूसरी एक बड़ी बात जो दिल्ली में सर इंडिया टॉय फेयर होने जा रहा है, तो ये जो इंडिया टॉय फेयर है, जो इस तरह का ये पहला जो मेला होगा कि जिसमें पूरे देश के मैन्युफैक्चरर है, इनोवेटर है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि ये किस तरह से पार्टिसिपेट करेगी और आप इसमें क्या रोल प्ले करेंगे। देखिए योगेश भाई, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और नेशनल टॉय फेयर जो अभी होने वाला है 27 फरवरी से 2 मार्च तक, उसका बेसिक पहलू तो ये है कि माननीय वड़ा प्रधान जी ने एक संकेत दिया है, एक निर्देश दिया है सभी संस्थाओं को कि जो भी संस्था अभी साइंस फेयर करेगी, विज्ञान मेले करेंगी, तो विज्ञान मेले का एक ही थीम होना चाहिए अगले 2 साल तक, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अगले 2 साल तक थीम क्या हो कि लर्निंग थ्रू टॉयज। टॉयज जो है लर्निंग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, साधन है, और इसके लिए अभी नेशनल टॉय फेयर में तो इतने सारे देश के जो सभी राज्यों में से जो आने वाले खिलौने हैं वर्चुअल मोड में दिखाया जाएगा, ऑनलाइन दिखाया जाएगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, कई सारे लोग देश भर के खिलौने देख पाएंगे। तो नेशनल टॉय फेयर का तो बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में, और इसमें चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी जो है वो उन्होंने भी पूरे गुजरात के टॉय मैन्युफैक्चरर्स का संपर्क इसी हेतु कर लिया है। कई लोगों को हमने जोड़ा है, और गुजरात के विविध मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा निर्माण किए गए खिलौने, ऐसे 21 खिलौने हमारे भी सिलेक्ट हुए हैं जो हम प्रदर्शित करेंगे, और इसमें भी हमें नई दिशा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा उपक्रम होगा, और ये नेशनल टॉय फेयर जो है वैसे ही टॉय फेयर स्टेट लेवल के भी हों, जिला लेवल के भी हों, तो ये बड़ा आवश्यक उपक्रम रहेगा, ऐसा लगता है। सर, आपने आकाशवाणी के साथ बातचीत की, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, हमारे विचार व्यक्त करने के लिए हमें आपने मौका दिया है, और पूरे देश भर को हमारा संदेश भी पहुंचेगा। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी पूरे देश में एक ही है, तो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का भी विचार देश भर में आपके माध्यम से पहुंचेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी इंडिया टॉयज फेयर 2021 के संबंध में गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षित शाह से आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।
ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के कार्यों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। अनुच्छेद 370 हटने और जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार का बल इस बात पर है कि जो विकास कार्य हैं इन क्षेत्रों के लिए उन्हें तेजी प्रदान की जाए और इसलिए हमने देखा भी है कि जो जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का विकास है उसको विश्व भर में उसकी पहुंच के लिए सरकार ने समय समय पर अलग अलग देश के राजनयिक हैं उनके डेलीगेशंस का आयोजन किया है और जो वर्तमान अलग अलग देशों के राजनयिकों का आगमन है जम्मू कश्मीर में वो भी इस बात का परिचायक है कि सरकार का प्रयास है कि विश्व भर में जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों की पहुंच हो और उससे विश्व अवगत हो। पहले आप ही बात पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि जो सरकार का प्रयास है कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में विकास को तेजी प्रदान की जाए, जो जटिल प्रक्रिया थी उन्हें सरल बनाया जाए। इसके लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जिसमें हाईवेज टनल का निर्माण हो, ऊर्जा संवर्धन की बात हो या इसके अलावा जो पर्यटन इन इलाकों का आकर्षण रहा है उसमें मजबूती देने की बात हो, तो इन सभी बातों को लेकर सरकार काम कर रही है। आपकी क्या टिप्पणी होगी कि जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के इस विकास से देश को कितना लाभ होगा? सरकार की तरफ से पूरा जो प्रयास रहा है वो यही है कि विकास जितना हो तेजी से पहुंचे, क्योंकि सरकार ये उनके नजर में है, ये चाहते हैं देखें कि विकास लोगों तक पहुंचे जो शायद वंचित रह गए या उनको जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि केंद्र से जो धन आवंटन किया जाता है, चूंकि ये स्पेशल स्टेट्स हैं, हिल स्टेट्स हैं, तकरीबन 90% वहाँ की जो रेवेन्यू है वो स्टेट्स के जो है वो केंद्र देती है, उसका खर्चा केंद्र निर्वहन करती है। तो ऐसे में जब केंद्र का इतना पैसा जाता है वो तो सरकार की तरफ से पूरा इस पे जोर रहा है कि भाई विकास तेजी से पकड़े और लोग जो वहाँ पे जिनको वंचित रह गए या उनको कम मिल रहा था वो विकास की मुख्य धारा में तेजी से जुड़े। सरकार दो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे रही है जो जम्मू कश्मीर की ताकत है, जैसे एक तो हॉर्टिकल्चर और एक सेरिकल्चर। सरकार ने हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर के व्यापार को बढ़ाने के लिए और उसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की। इसके तहत जो हॉर्टिकल्चर उत्पाद है या फलों का उत्पाद है उसमें हमने देखा कि रिकॉर्ड वृद्धि हुई और साथ ही जो सिल्क ककून है उसके व्यापार में भी हमने देखा बढ़ोतरी हुई। तो आपको क्या लगता है कि जो इस इलाके की ताकत है उसको प्रोत्साहन देकर सरकार इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति बढ़ाने में कदम आगे बढ़ा रही है? कृषि और बागवानी के साथ जो जुड़े हुए हैं, साथ में खासकर पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, क्योंकि फूल और ये है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है अपने में। तो अगर उस सप्लाई में अब भारत की तरफ से भी कोशिश होती रही है पिछले कई सालों से कि भाई विश्व के इस मार्केट को भी आपके निर्यात और आयात के जो स्रोत है उसमें तेजी से फर्क पड़ता है। इसका फायदा ये होता है कि न सिर्फ इसमें छोटे किसान या छोटे बागवानी करते हैं उनके साथ भी जाते हैं जो छोटे रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं, और तमाम सारी जो इनकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, एक पूरा जो सप्लाई चेन बनता है और उसमें कई लोग आते हैं। और जरूरी नहीं है कि इसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस ही हों, तो छोटे छोटे चूंकि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से ही ये निकलते हैं और वहाँ पे ज्यादा एक तो वो लेबर इंटेंसिव होता है और उसके साथ उनकी आमदनी बढ़ने की साधन बनते जाते हैं। इसका ये भी एडवांटेज है कि जम्मू कश्मीर पिछले कई वर्षों से हमेशा ही, जैसे आपने पहले भी कहा, वहाँ पे पर्यटन के ऊपर काफी निर्भर रहता है, खासकर ग्रीष्म कालों में और सर्दी आने तक। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जो देखा गया है कि काफी इसमें गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन थी उसको लेकर 1990 के बाद जो हालात बिगड़े काफी कम हो गए। लेकिन पिछले 10-15 सालों से इसमें तब्दीली देखी गई, लेकिन बीच में छुटपुट घटनाएं होती है तो सुरक्षा के कारण से लोगों के मन में एक शंका थी कि जाए न जाए। तो एक माहौल को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते, एक तो वहाँ लोकल अपने आप को महसूस करे, सिक्योरिटी सिक्योर रहे, साथ ही साथ वो प्रगति की ओर खुद वो काम करे, अपने हाथ से जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जैसे आपने कहा सेरिकल्चर हुआ, तो इसमें एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और एक अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको लगातार मिलती है। लेह लद्दाख के विकास में अवरोध इस बात से था कि जो लद्दाख की कनेक्टिविटी थी वो देश के दूसरे हिस्सों से इतनी पुख्ता नहीं थी, इसलिए सरकार ने अब वहां पर भी आधारभूत ढांचा खड़ा करने के प्रयास किए हैं और खासतौर पर जो उद्यमी युवा हैं वो निकले, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए, इनोवेटर्स वहां निकलें और इसी प्रयास में सरकार ने नेशनल ट्रेनिंग स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना का काम शुरू किया है और इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम भी चल रहा है। तो लद्दाख के युवाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार के इन प्रयासों पर आपकी क्या टिप्पणी है? युवा
सक्षम है, तो उसको और सक्षम कैसे बना जाए, क्योंकि जैसे पूरे विश्व में जो तैयारी हो रही है अपने आप को एक ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ बना रहे, खासकर जब से ये कोविड से पहले भी ये शुरुआत हो गई थी कि कैसे भारत जो है विश्व के ग्लोबल जो सप्लाई चेन से उसके साथ जुड़े। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो विशेषताएं हैं, वहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज सबसे उसमें जरूरत होता है स्किल सेट। क्या हमारे पास जो वर्क फोर्स है, क्या उनके पास उस तरह के स्किल सेट है कि वे इन चीजों को आगे बढ़ा चाहे। अगर नहीं है तो सरकार उनको प्रोत्साहन कैसे करे, उनको ट्रेन करे, उनको प्रशिक्षण दे और फोकस पोजीशन दे जो कि वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ के तालमेल बिठाकर काम आए। वहाँ का युवा वहीं पे अपनी नौकरी या रोजगारी करे और साथ ही साथ साधन उसके बढ़ते जाते हैं और हमारे जो आर्थिक व्यवस्था में ये कारगर साबित होते हैं। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दे रही है और इसी के साथ साथ जो ऊर्जा संवर्धन है उस पर भी ध्यान दे रही है। जैसे अगर लद्दाख की बात करें तो सरकार का फोकस है कि लद्दाख में सौर ऊर्जा का एक केंद्र बने और वो सौर ऊर्जा जो नेशनल पावर ग्रिड है उस तक पहुंचे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े हाईवेज, टनल का निर्माण किया जा रहा है जिससे कि न सिर्फ देश के दूसरे हिस्से लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जुड़े बल्कि जो अंदरूनी इलाके हैं उनकी भी आपसी कनेक्टिविटी हो और सामान्य आवाजाही भी सुलभ हो। इसके साथ साथ जो हमारी सेना तक मूलभूत जरूरतें पहुंचने की सुविधा है वो भी पुख्ता हो। उदाहरण के तौर पर हम जो अभी हाल ही में बानीहाल काजीकुंड टनल का जो निर्माण चल रहा है उसके उदाहरण को ले सकते हैं और जो अटल टनल जिसने हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ा है ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आधारभूत ढांचे को मजबूत करना इन इलाकों के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, तो बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दो वजह से। एक तो आपने कहा सामान्य नागरिकों को आने जाने में सुविधा रहती है, साथ ही साथ सामरिक दृष्टि से भी। जैसे आपने कहा भारतीय सेना साजो सामान उनका जाता है, उनके खान पीन का पूरा, क्योंकि कुछ इलाके तो बर्फ के वजह से कई महीनों तक अनसर्विसेबल हो जाते, तो आप राजमार्ग से नहीं जा सकते। तो उसके लिए पहले क्या होता था कि सेना की जहाज दुर्गम इलाकों में और खासकर दूर सप्लाई पहुंचाती तो उसकी अपनी बाधाएं होती थी और उसकी अपनी सीमाएं होती थी। लेकिन आपके पास अगर सड़क ऑल वेदर टनल जिसे कहा जाता है कि भाई किसी भी मौसम में वो चले, और हाँ उसके बाद जरूर है कि उसको मेंटेन करना पड़ता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये कार्य करती रही और अब ज्यादा करेगी, क्योंकि टनल के इर्द गिर्द जो बर्फ जमता है, बर्फीले इलाका है, उसको लगातार सफाई करना पड़ता है, सुविधाएं बढ़ती है। कई जो लॉन्ग रूट्स है, जैसे आपने जिस अटल टनल का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में ये एक तरह से दृष्टिकोण लिया गया था कि एक सामरिक दृष्टि से भी ये एक ऑल वेदर रूट हो, क्योंकि सर्दी के इलाके में जैसे मैंने कहा कि कई रास्ते बंद हो जाते थे और आपको अलग अलग प्रांतों में, जो कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों चीजें उसको जोड़ती है। और जैसे हमने देखा कि पूरे भारत के अन्य प्रांतों में जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट चला है, जैसे ही नेशनल हाईवे बनने चले गए, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की कल्पना की गई थी वाजपेयी जी के वक्त, उससे विकास कितनी तेजी से बढ़ा है, क्योंकि आवाजाही बढ़ी, हाईवे के इर्द गिर्द विकास होता चला गया। ठीक उसी तरह अगर आप दुर्गम इलाकों में ऑल वेदर रोड्स बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग आना जाना आसान होगा, तो ट्रेड और कल्चर के लिए भी ये थोड़ा आसान रहेगा लोगों के। मिस्टर प्रसाद, विकास के लिए आवश्यक है कि इलाके में शांति स्थापित हो और शांति के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सही तरह से चले। और हाल ही में हमने एक उदाहरण देखा कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, वो सफलतापूर्वक उनका आयोजन हुआ। तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितना बड़ा संकेत है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर सफल है और चुनावों की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। जो हमारी परिकल्पना रही है 3 टियर ऑफ गवर्नेंस में, तो उसमें पंचायत और नीचे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल बॉडीज का अहम भूमिका दी गई, क्योंकि इस वक्त ड्यूटी है। और अभी वहाँ पे जैसे सरकार ने कहा भी था कि चुनाव कराएंगे, उसके लिए डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। सबसे नीचे जो कि रोज जिससे आपको ताल्लुकात पड़ता है, लोकल लेवल पे जो आपके लोग हैं जो कि आपके कार्य में मदद कर रहे हैं, तो उसमें डीडीसी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट हो जाता है। और शायद यही वजह है कि इस प्रक्रिया को तेजी से इस पे कार्रवाई हुई। देश का विकास जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास पर बहुत निर्भर करता है, इसीलिए सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि आधारभूत ढांचा तो मजबूत हो ही रहा है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर और जो मूलभूत योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ एक आम नागरिक तक पहुंचे। तो उम्मीद है कि इन प्रयासों से इस इलाके के साथ साथ देश की प्रगति में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के कार्यों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के.वी. प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।
ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है टेक्नोलॉजी द्वारा न्यायिक दक्षता में सुधार। गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन। नमस्कार। देश के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह जी, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्रीमान विक्रमनाथ जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, गुजरात हाई कोर्ट के सभी सम्मानित जजेज, भारत के सॉलिसिटर जनरल भाई तुषार मेहता जी, एडवोकेट जनरल गुजरात श्री कमल त्रिवेदी जी, बार के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवी और सज्जनों, गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबिली के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। અને ગુજરાતના સૌ વાલા નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને પણ ખૂબ ખૂબ બધાई। पिछले 60 वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाई कोर्ट और बार दोनों ने ही एक विशिष्ट पहचान बनाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है, उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया है। गुजरात हाई कोर्ट की इस अविस्मरणीय यात्रा की स्मृति में आज एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े आप सभी महानुभावों को, गुजरात की जनता को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय, हमारे संविधान में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनको दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। आज हर देशवासी पूरे संतोष से ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने, न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है। हमारी जुडिशरी ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को भी मजबूत किया है। देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हो, निजी स्वतंत्रता का प्रश्न हो, ऐसी परिस्थितियां रही हो जब देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी हो, जुडिशरी ने अपने इन दायित्वों को समझा भी है और निभाया भी है। आप सभी भी भली भांति जानते हैं कि भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने बाने का, हमारे संस्कार का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, न्यायमूलम सुराज्यम स्यात्, यानी सुराज्य की जड़ ही न्याय में है, रूल ऑफ लॉ में है। ये विचार आदिकाल से हमारे संस्कारों का भी हिस्सा रहा है। इसी मंत्र ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को भी नैतिक ताकत दी और यही विचार हमारे संविधान निर्माताओं ने भी संविधान निर्माण के समय सबसे ऊपर रखा था। हमारे संविधान की प्रस्तावना रूल ऑफ लॉ के इसी संकल्प की अभिव्यक्ति है। आज हर एक देशवासी को गर्व है कि हमारे संविधान की इस भावना को, इन मूल्यों को हमारी न्यायपालिका ने निरंतर ऊर्जा दी है, दिशा दी है। न्यायपालिका के प्रति इस भरोसे ने हमारे सामान्य से सामान्य मानवी के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है। सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है। और जब हम आजादी से अब तक देश की इस यात्रा में जुडिशरी के योगदान की चर्चा करते हैं, तो इसमें बार के योगदान की चर्चा भी आवश्यक होती है। हमारी न्याय व्यवस्था की ये गौरवशाली इमारत बार के ही पिलर पर खड़ी है। दशकों से हमारे देश में
बार और जुडिशरी मिलकर ही न्याय के मूलभूत उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। हमारे संविधान ने न्याय की जो धारणा सामने रखी है, न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है। इसलिए ये जुडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वो मिलकर वर्ल्ड क्लास जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम खड़ा करे। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। आज न्यायपालिका की तरह ही सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत के लोकतंत्र ने, हमारी न्यायपालिका ने कठिन से कठिन समय में भी भारतीय नागरिकों के न्याय के अधिकार को सुरक्षित रखा है। कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमें इसका उत्तम उदाहरण फिर एक बार देखने को मिला है। इस आपदा में अगर एक और देश ने अपना सामर्थ्य दिखाया, तो दूसरी ओर हमारी न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जिस तरह लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह एसएमएस कॉल आउट, मुकदमों की ई फाइलिंग और ईमेल माय केस स्टेटस की सेवा शुरू की गई, कोर्ट के डिस्प्ले बोर्ड की यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग शुरू की गई, हर दिन जजमेंट्स और ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड किए गए। इन सब ने ये सिद्ध किया है कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना एडेप्टिव है और न्याय के लिए उसके प्रयासों का विस्तार कितना ज्यादा है। मुझे बताया गया है कि गुजरात हाईकोर्ट तो इस दौरान कोर्ट प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला भी पहला कोर्ट बना है और ओपन कोर्ट की जिस अवधारणा पर लंबे समय से चर्चा होती रही है, उसे भी गुजरात हाईकोर्ट ने साकार करके दिखाया है। हमारे लिए ये संतोष का विषय है कि कानून मंत्रालय ने ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन बोर्ड प्रोजेक्ट के तहत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था, उसने इतने कम समय में हमारे कोर्ट्स को वर्चुअल कोर्ट के तौर पर काम करने में मदद की। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को लीगल सैंक्टिटी मिलने के बाद से भी सभी अदालतों में ई प्रोसीडिंग में तेजी आई है। ये सुनकर हम सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। दुनिया में हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कोविड के टाइम में ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई कर चुके हैं। केसेस की ई फाइलिंग, इसकी सुविधा ने भी ईज ऑफ जस्टिस को एक नया आयाम दिया है। इसी तरह आज हमारी अदालतों में हर केस के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और क्यूआर कोड दिया जा रहा है। इससे न केवल केस से जुड़ी हर जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है, बल्कि इसने नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की भी एक प्रकार से मजबूत नींव रखी है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के जरिए लॉयर्स और लिटिगेंट्स केवल क्लिक मात्र से सभी केसेस और ऑर्डर्स देख सकते हैं।
ये ईज ऑफ जस्टिस न केवल हमारे नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है, बल्कि इससे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे विदेशी निवेशकों में ये भरोसा जगा है कि भारत में उनके न्यायिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 2018 की अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड की प्रशंसा की है। माननीय, आने वाले दिनों में भारत में ईज ऑफ जस्टिस और भी तेजी से बढ़े, इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है। मजबूत सुरक्षा के साथ साथ क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं को शामिल करने पर काम हो रहा है। हमारे जस्टिस सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी, एआई की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुडिशरी की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। इन प्रयासों में देश का आत्मनिर्भर भारत अभियान बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत के अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए, सामान्य लोगों की मदद के लिए हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ई सेवा केंद्र भी खोले जा रहे हैं। हम सभी ने देखा है कि महामारी के इस कठिन समय में ऑनलाइन ई लोक अदालत भी एक न्यू नॉर्मल बन गई है। संयोग से ये गुजरात ही था जहां 35-40 साल पहले जूनागढ़ में पहली लोक अदालत लगाई गई थी। आज ई लोक अदालत समयबद्ध और सुविधापूर्ण न्याय का एक बड़ा माध्यम बन रही है। देश के 24 राज्यों में अब तक लाखों मुकदमे ई लोक अदालतों में आ चुके हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। यही गति, यही सुविधा और यही विश्वास आज हमारी न्यायिक व्यवस्था की मांग है। गुजरात एक और बात के लिए भी अपने योगदान के लिए गर्व करता रहा है। गुजरात पहला राज्य था जिसने इवनिंग कोर्ट की परंपरा शुरू की थी और गरीबों की भलाई के लिए अनेक इनिशिएटिव लिए थे। किसी भी समाज में नियमों और नीतियों की सार्थकता न्याय से ही होती है। न्याय से ही नागरिकों में निश्चिंतता आती है और एक निश्चिंत समाज ही प्रगति के बारे में सोचता है, संकल्प लेता है और पुरुषार्थ करके प्रगति की ओर बढ़ता है। मुझे विश्वास है कि हमारी न्यायपालिका से जुड़े आप सभी वरिष्ठ सदस्य हमारे संविधान की न्याय शक्ति को निरंतर सशक्त करते रहेंगे। न्याय की इसी शक्ति से हमारा देश आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सब अपने प्रयत्नों से, अपने पुरुषार्थ से, हमारी सामूहिक शक्ति से, हमारी संकल्प शक्ति से, हमारी अविरत साधना से हम सिद्ध करके रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार फिर डायमंड जुबिली की बहुत बहुत बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। खूब खूब धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे टेक्नोलॉजी द्वारा न्यायिक दक्षता में सुधार, गुजरात उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है स्वस्थ भारत के लिए बजट 2021-22 पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Now may I request Honorable Minister Sir to kindly address the gathering.
हमेशा से मैं ये कहता रहा हूं कि हेल्थ में जो प्रिवेंशन है, पॉजिटिव हेल्थ है, प्रमोटिव हेल्थ है, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें भी जो होलिस्टिक हेल्थ का कंसेप्ट है, इसको एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होना चाहिए। ये सोशल मूवमेंट बनना चाहिए। पिछले 6-7 वर्षों में सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इतने वर्षों में ये महसूस हुआ कि हेल्थ अपनी सही दिशा की ओर जिस प्रकार से उसको बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से उसको प्रगति करनी चाहिए इस क्षेत्र को, वो बढ़ रहा है। 2020 में कोविड आया और इस कोविड ने तो शायद जो देश की हेल्थ के क्षेत्र की जो छुपी हुई प्रतिभा थी या जो योग्यता थी या जो पोटेंशियल था, उसको एक प्रकार से उभार दिया। हमने देखा कि किस प्रकार से एक लेबोरेटरी से 2500 लेबोरेटरीज तक हम पहुंचे। हमने देखा कि हम देखते ही देखते जब क्राइसिस था तो पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, डायग्नोस्टिक किट्स, इनको विदेशों से लाने के बारे में और बहुत ज्यादा उस समय कॉस्ट होती थी क्योंकि उस समय था लोगों को उनके प्राण की रक्षा को करना प्राथमिकता थी। लेकिन ये देखते ही देखते हमने देखा कि ये सारी चीजें आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गई। हमने देखते ही देखते ये सब चीजें देखी कि किस प्रकार से हमारा ICMR उसने दुनिया में सबसे पहले शायद शुरुआती देशों में वायरस को आइसोलेट कर दिया। जब म्यूटेशन आया उस म्यूटेशन को भी आइसोलेट कर दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग अभी ज्यादा चर्चा के अंदर आई, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग तो हमारे लेबोरेटरीज में और ICMR में तो मई-जून के महीने के अंदर होनी शुरू हो गई थी। और जिस प्रकार से देखते ही देखते हमने देखा कि इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर कोई वैक्सीन का डेवलपमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुली हो गई। आज 80-85 लाख लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन भी उपलब्ध हो गई है। 20-25 देशों को हम ऑलरेडी वैक्सीन जो है वो विदेशों को देने की स्थिति के अंदर आ गए हैं और बहुत ही जल्दी जो एक बड़ी कैटेगरी है 50 साल से ऊपर के लोग, इनको भी मार्च के महीने में हम वैक्सीन देने की स्थिति में आ रहे हैं। और खाली ये 2 वैक्सीन नहीं, अभी जब मैं लिस्ट का विश्लेषण करता हूं तो ध्यान में आता है कि कम से कम 18-20 वैक्सीन के ऊपर अलग अलग स्टेजेस में काम हो रहा है। कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल है, कोई फेज 1 है, कोई फेज 2 है, कोई फेज 3 है। सबके अंदर अलग अलग स्टेजेस में और कुछ एक अगले कुछ महीनों में आ सकती हैं। यानी जो आत्मनिर्भरता का जो एक उदाहरण था, जिसके बारे में, जिसके कंटेक्स्ट में अभी ये प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपया अगले 6 सालों के लिए रखा गया, ओवर एंड अबव व्हाट वी ऑलरेडी गेट इन हेल्थ, जिसमें भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। मेरे लिए ये बहुत संतोष की बात है कि अभी हम एक प्रकार से जो फ्यूचर हमारी रेडीनेस है बायो सेफ्टी के बारे में और बायो सिक्योरिटी के बारे में, WHO का डाटा है कि 2020 में ही कोविड के अलावा भी 60 आउटब्रेक्स को जो है दुनिया ने सामना किया। और खाली अगर ICMR की बात करें तो उनका कहना है कि पिछले 6 साल में उन्होंने 1240 रीजनल आउटब्रेक्स जो है उनको खाली ICMR ने इन्वेस्टिगेट किया। अगर मैं NCDC वालों से बात करूं, उनके भी यहाँ चीफ बैठे हैं, तो वो तो कहते हैं इससे ज्यादा हम हर साल करते रहते हैं। यानी ये सारी परिस्थितियों के अंदर और जो पिछले 10 साल के अंदर खासकर जो 4 जो है हमारे दुनिया के अंदर जो है H1N1, इबोला, जीका और ये कोविड का भी पेंडेमिक की परिस्थिति हुई और भी दूसरी जो बीमारियां आई, उसकी दृष्टि से ये जो बजट है ये हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि हम अपने आप को फ्यूचर रेडी करने के लिए, यद्यपि उस भयंकर परिस्थिति के अंदर भी जब 1 साल के अंदर इतनी तकलीफ थी हमें, तब भी हमारा देश उठकर खड़ा हो गया। वैज्ञानिक भी खड़े हो गए, डॉक्टर भी खड़े हो गए, रिसर्चर्स भी खड़े हो गए और उन्होंने उसी परिस्थिति में भी अपने आप को आत्मनिर्भर करके दिखाया। लेकिन अभी भविष्य की जो परिस्थिति है उसमें हम नीचे लेवल तक जो भी हमारी इस 1 साल की लर्निंग्स हैं, उन लर्निंग्स के आधार पर नीचे लेवल पर प्रिवेंशन की दृष्टि से, सर्वेलेंस की दृष्टि से, वहां पर जो कोई क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके ट्रीटमेंट की दृष्टि से, ब्लॉक लेवल पर डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज विकसित करने की दृष्टि से इस कोविड में ध्यान में आया कि ये जो वायरस का स्वैब टेस्ट है ये कुछ साल पहले तक अमेरिका के अंदर जाता था, 5-7 साल पहले CDC अटलांटा वगैरह में। और अभी इस कोविड में ध्यान में आया कि एक ही हमारे पास लेबोरेटरी है NIV पुणे, जहां की हम ये वायरस को आइसोलेट कर पा रहे हैं या जहां पर ये डायग्नोस्टिक किट्स और दूसरी चीजें हैं इनके वैलिडेशन का काम हो सकता है या उससे संबंधित जितने भी पक्ष हैं उनकी हैंडलिंग हो सकती है। तो अभी आगे की फ्यूचर रेडीनेस की दृष्टि से जो एक
बड़ा पिक्चर बनाया गया है और जिसके लिए हम इस समय प्रधानमंत्री जी को और अपने वित्त मंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो विजन हमारे मंत्रालय के सभी साथियों ने आने वाले समय के लिए प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया। आज चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, उसके लिए सारे देश के अंदर रीजनल स्तर पर उसी तरह के इंस्टीट्यूशंस का क्रिएट करना हो, चाहे फिर बायो सेफ्टी जो BSL लैब्स हो, BSL 3 लैब्स हो, या इसी प्रकार से NCDC के जो BSL लैब्स हैं या उनके जो रीजनल सारे देश में सेंटर्स हैं, ब्लॉक लेवल पर क्रिटिकल केयर के, डायग्नोस्टिक के, वो सारे विस्तार से आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की गई हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बजट हमारे सबके लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए हमें बहुत ज्यादा आनंद भी है, संतोष भी है। और आज हम देखते हैं कि 1,09,16,589 लोग कोविड से ग्रस्त हुए और इन 1,09,00,000 में से 1,06,21,220 ठीक होकर घर चले गए हैं। हम 97.29% के रिकवरी रेट पर आज हैं। दुनिया का सबसे कम हमारा फैटेलिटी रेट 1.43% है। और आज मैं देख रहा था कि पिछले 7 दिन में देश के 188 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। देश के 76 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले 28 दिन के अंदर कोई भी कोविड का केस नहीं हुआ। 34 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी फ्रेश केस 14 दिन के अंदर नहीं हुआ और 21 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी फ्रेश केस जो है वो 21 दिनों के अंदर नहीं हुआ। और जैसा हम सबने देखा कि इस विषम परिस्थिति में भी 20 लाख से ऊपर कोविड के लिए डेडिकेटेड बेड्स देश ने क्रिएट किए, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज के रूप में, चाहे कोविड केयर सेंटर्स के रूप में। 12,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स विकसित किए। 10 लाख से ज्यादा रोज के टेस्ट भारत ने करने शुरू कर दिए। बड़ी संख्या के अंदर N95 मास्क और PPE किट्स बनाना शुरू कर दिया था। वेंटिलेटर्स हमने बनाने शुरू कर दिए। हमारी साइंस लेबोरेटरीज ने 150 से ज्यादा देशों को हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इस दौरान के अंदर आत्मनिर्भरता का इतना बड़ा परिचय देते हुए एक्सपोर्ट किया। और उन सब चीजों का परिणाम यह हुआ कि आज बड़े गर्व से भारत दुनिया के सामने अपने दोनों पांवों पे खड़ा होकर कह पा रहा है कि हमने विषम परिस्थितियों में भी कोविड के खिलाफ जो लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक जीतने का प्रयास किया है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा लगता है कि शायद कोविड के खिलाफ जो जंग है उसका जो बिगनिंग ऑफ द एंड है वो शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आई है कि अभी तो वैक्सीन भी आ गई है और कोविड के केसेस भी बहुत कम हो गए हैं और 4-6 महीने से लगातार नंबर्स के अंदर सुधार होता जा रहा है। इसलिए मास्क लगाओ या ना लगाओ, मास्क को घर में छोड़ के आओ, मास्क को गले पर लटका कर रखो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो वैक्सीन आ ही गई है। तो आप सबकी एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसके संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हमने सारे साल भर, चाहे वो टेलीफोन की कॉलर ट्यून के माध्यम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ होने वाली 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा जो जानकारी दी गई है, हमने बार बार लोगों को रिमाइंड किया है। और उस रिमाइंडर में शायद अभी सबसे क्रूशियल टाइम आया है, क्योंकि इस समय जब चीजें कम हो रही हैं, लोगों को शायद ये गलतफहमी हो सकती है कि इसका इस्तेमाल अब उतना आवश्यक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये जो प्रिकॉशंस लेना है, जिसको पूरे 1 साल में सोशल वैक्सीन का नाम देता रहा, अभी भले ही सोशल वैक्सीन के साथ रियल वैक्सीन भी आ गई है। एक तरफ रियल वैक्सीन का इस्तेमाल करना है, एक तरफ इस सोशल वैक्सीन का भी इस्तेमाल करना है। और हमें पूरा विश्वास भी है इस बात का, उत्साह भी है कि शायद आने वाले समय में हम अपने देश को निश्चित रूप से कोविड के संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकालेंगे। इस बजट के माध्यम से भविष्य की नींव रखने की कोशिश की गई है। जहां इस प्रकार की त्रासदी कभी भी भारत में आए, किसी भी बीमारी के माध्यम से आए, किसी भी वायरस के माध्यम से आए, तो हम उसको इस समय के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए और बेहतर ढंग से फेस करने के लिए फ्यूचर रेडी हों। यही इस बार के बजट का बहुत बड़ा संदेश है। और हमने ये देखा है कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री जी ने जो भी मूवमेंट्स लॉन्च किए, स्वच्छ भारत का मूवमेंट अगर आया या टॉयलेट देश के अंदर बने, और 1 साल में तो हमने ये देखा कि ये मास्क लगाने के कारण लगाया, तो मास्क हमने शायद कोविड के लिए था, लेकिन हमारे बहुत सारे और दूसरे इन्फेक्शंस जो ड्रॉपलेट के कारण स्प्रेड होते थे, वो उनके अंदर भी कमी आ गई। टॉयलेट्स के कारण जो हमारे फीमेल्स के लिए एक और आइडियल कॉन्ड्यूसिव अपनी उसको
प्राइवेट लाइफ को हैंडल करने का एक मौका गांव-गांव मिला, उसके कारण भी कुछ जो बीमारियां उससे संबंधित थी उनके अंदर जो है हमें निश्चित रूप से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य एक जन आंदोलन बने, जो हमारा वर्षों से एक सपना रहा है, उस दिशा में देश और समाज प्रगति कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए इतनी बड़ी संख्या में देश के एनजीओज ने, हेल्थ वर्कर्स ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। तो मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही अपील करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को और खासकर प्रिवेंटिव हेल्थ को, पॉजिटिव हेल्थ को, इसको हम कितना बड़ा आंदोलन आने वाले वर्षों में और बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो एक बहुत ही पुराना विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी सपना है, पहले तो हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 कहते थे, लेकिन मुझे विश्वास है कि हेल्थ फॉर ऑल का सपना अगर कभी भी साकार होगा दुनिया में तो उसका मॉडल जो है वो भारत के अंदर विकसित होगा। भारत का जो होलिस्टिक अप्रोच है, भारत का जो एंशिएंट मेडिकल विजडम है, भारत के अंदर जो दूसरी जितनी भी हेल्थ से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं, जितनी भी सिस्टम्स हैं, ये सारे लोग मिलके जब होलिस्टिक तरीके से काम करेंगे तो शायद पूरे वर्ल्ड के लिए इम्यूलेट करने लायक जो मॉडल है वो भारत डेवलप करके देगा। और सौभाग्य से अभी हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनकी ओवरऑल दृष्टि तो उनकी बहुत व्यापक है ही, जो लोगों के सफरिंग्स को खत्म करने के लिए, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स की समाधान करने के लिए नए सिरे से वो हर विषय के ऊपर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, नई योजना बनाते हैं, नया विजन डेवलप करते हैं, उस विजन को प्रोग्राम में परिवर्तित करते हैं, उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी स्वयं करते हैं, उसके जो आउटकम्स हैं उनको भी स्वयं विश्लेषण करते हैं, उसमें फिर अमेंडमेंट्स भी खुद गाइड करते हैं। तो ऐसे समय पे जब इस प्रकार का नेतृत्व भारत के पास है, जिसका स्वास्थ्य के प्रति भी, एजुकेशन के प्रति भी और विशेषकर साइंस के प्रति जो है बहुत ज्यादा कमिटमेंट है, पैशन है, तो हमें लगता है कि आप सबके सहयोग से भारत बहुत तेजी से इन सब विषयों पर आगे बढ़ सकता है। इसी निवेदन के साथ कि आपका सहयोग देश को ऐसे ही मिलता रहे। Thank you, Minister, sir. Now may I request Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Rajesh Bhushan, sir, to give remarks on positioning of health and well-being in the Union Budget. नमस्कार। इस अवसर पर यूनियन बजट के केवल एक सब थीम पर मैं आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यूनियन बजट में जो अप्रोच अपनाई गई है वो होलिस्टिक अप्रोच है। अब ये होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हेल्थ वो नहीं है जो गतिविधियां केवल स्वास्थ्य मंत्रालय में ही होती हैं। हेल्थ केयर का अर्थ है वो गतिविधियां भी जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च में होती हैं, जो आयुष मंत्रालय में होती हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन मंत्रालय में होती हैं और जो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय में होती हैं। तो इनको एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में इस बजट में लिया गया है। ये जो अप्रोच है ये 2017 की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनी थी उसमें स्पष्ट कर दी गई थी और मैं आपको उसका एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। The National Health Policy 2017 prescribed that the attainment of the highest possible level of health and well-being for all at all ages through a preventive and promotive health care orientation in all developmental policies is our goal. तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने ये नहीं कहा था कि केवल स्वास्थ्य मंत्रालय को सुदृढ़ करना ही हमारा गोल है या हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा था कि हेल्थ और वेलबींग सभी उम्र के लोगों के लिए सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है और कैसे सुनिश्चित करेंगे? प्रिवेंटिव हेल्थ पर भी बल देंगे और प्रमोटिव हेल्थ पर भी बल देंगे। तो ये थीम है विच रन्स थ्रू आउट द यूनियन बजट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आप सुन रहे थे स्वस्थ भारत के लिए बजट 2021-22 पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। This is All India Radio. In the program Spotlight, now we bring you Prime Minister's address at the launch of India Toy Fair 2021.
Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the India Toy Fair 2021 today through video conferencing. The India Toy Fair 2021 is being organized in line with this vision of the Prime Minister. The fair will be held from the 27th of February to the 2nd of March 2021. It aims to bring together all stakeholders, including buyers, sellers, students, teachers, and designers on a virtual platform to create sustainable linkages and encourage dialogue for the overall development of the industry. Addressing the event, the Prime Minister called for bringing out the hidden potential of the toy industry in India and to create an identity for it as a big part of the campaign for the Atmanirbhar Bharat. आप सभी से बात करके ये पता चलता है कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। He added this first toy fair is not just a business or economic event. This program is a link to strengthen the country's age-old culture of sports and cheer. He further said the world has done research on toys from the era of Indus Valley civilization, Mohenjo-daro and Harappa. साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो और हड़प्पा के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। The Prime Minister recalled that in ancient times, when travelers from the world came to India, they used to learn sports in India and used to take it along with them. He added that chess, which is so popular in the world today, was earlier played in India as Chaturang or Chadurang. Modern Ludo was then played as Pachisi. He said in our scriptures it was described that Balram had a lot of toys. In Gokul, Gopal Krishna used to play with his friends outside the house in a balloon. Games, toys and crafts have also been engraved in our ancient temples. हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के, खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। साथियों, किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था। The Prime Minister said toys made here contributed to the all-round development of children. He said the way reuse and recycling have been a part of the Indian lifestyle, it is also seen in our toys. Most Indian toys are made from natural and eco-friendly items. The colors used in them are also natural and safe. He appealed to the country's toy manufacturers to make toys that are better for both ecology and psychology. He asked them to use less plastic in toys, to use such things that can be recycled. साथियों, रीयूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया को देखिए, राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए, ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुड़िया है, कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंध्र प्रदेश के इटिकोपक, बोम्मलू और बुधनी के लकड़ी के खिलौने हैं। कर्नाटक जाएंगे तो वहां के चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं।
The Prime Minister remarked that today across the world in every sector, the Indian outlook and Indian ideas are being talked about. He said these toys also connect the mind with our history and culture and are also helpful in social mental development and the cultivation of Indian outlook. भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी है। ये हमारी परंपराओं में, हमारे परिधानों में, हमारे खान-पान में हर जगह ये विविधताएं एक ताकत के रूप में नजर आती हैं। इसी तरह भारतीय टॉय इंडस्ट्री भी इस यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव को, भारतीय विचारबोध को प्रोत्साहित कर सकती है। हमारे यहाँ खिलौने तो पीढ़ियों की विरासत के तौर पर रखे और सहेजे जाते रहे हैं। The PM said it is a specialty of Indian sports and toys that they contain knowledge, science, entertainment and psychology. He added when children learn to play with Lattu, they are taught the lesson of gravity and balance while playing Lattu. In the same way, a child playing with a slingshot inadvertently starts learning basics about potential and kinetic energies. He said puzzle toys develop strategic thinking and problem solving. Similarly, newborns also begin to feel the circular movement by twisting and rotating arms. साइंस के कितने ही सिद्धांत, कितनी ही बातें, जैसे कि रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है। उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पाठ पढ़ा जाता है। वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है। पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है। इसी तरह नवजात बच्चे भी झुनझुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं। आगे जाकर इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। The Prime Minister said the creative toys develop the senses of the kids and give wings to their imagination. He urged parents to play with their children because toys play a vital role in the learning process of children. He said parents should understand the science of toys and the role they play in the development of children, and he urged teachers to use it in schools. He said in this direction the government has taken effective steps and brought changes through the new National Education Policy. आपको खेल और खिलौनों की भूमिका को जरूर समझना चाहिए। खिलौनों का जो वैज्ञानिक पक्ष है, बच्चों के विकास में, उनकी लर्निंग में खिलौनों की जो भूमिका है, उसे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और टीचर्स को स्कूलों में भी उसे प्रयोग करना चाहिए। इस दिशा में अब देश भी प्रभावी कदम उठा रहा है, व्यवस्था में जरूरी परिवर्तन कर रहा है। इसका एक उदाहरण हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्ले आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें बच्चों में पहेलियों और खेलों के माध्यम से तार्किक और रचनात्मक सोच बढ़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। The Prime Minister said in the field of toys, India has tradition and technology. India has concepts and competence. He expressed his hope that India can take the world back towards eco-friendly toys, and through our software engineers, computer games can spread the stories of India to the world. He said despite all this, today India's share in the $100 billion global toy market is very small, and 85% of toys in the country are sourced from abroad. He stressed the need to change the situation. $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% 85% खिलौने विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में
भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। और वो खिलौना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे अपने देश के वीरों, हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। इस बाढ़ ने, ये बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है, तहस नहस कर दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। The Prime Minister said the country has now graded the toy industry in 24 major sectors. He said the National Toy Action Plan has included 15 ministries and departments to make these industries competitive countries to become self-reliant in toys, and India's toys also go into the world. He said along with this, efforts are being made to strengthen the possibilities of toy tourism, and Toyathon 2021 was also organized to promote Indian sports-based toys. भारतीय खेलों पर आधारित खिलौनों को प्रमोट करने के लिए देश में टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन भी किया गया था। इस टॉयकाथॉन में 12 लाख से अधिक युवाओं ने, शिक्षकों ने और विशेषज्ञों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 7,000 से अधिक नए नए आइडियाज आए। ये दिखाता है कि दशकों की उपेक्षा और कठिनाइयों के बावजूद भारत की प्रतिभा, भारत का हुनर आज भी असाधारण संभावनाओं से भरा हुआ है। आज टॉय फेयर के इस अवसर पर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस ऊर्जा को आधुनिक अवतार दें, इन संभावनाओं को साकार करें। और हाँ, याद रखिए, अगर आज मेड इन इंडिया की डिमांड है तो आज हैंडमेड इन इंडिया की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि उस खिलौने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हैंडमेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है। हमें ये भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलौना बनाते हैं तो हम एक बाल मन को घड़ते हैं, बचपन के असीम उल्लास को घड़ते हैं, उसमें सपने भरते हैं। यही उल्लास हमारे कल का निर्माण करेगा। मुझे खुशी है कि आज हमारा देश इस जिम्मेदारी को समझ रहा है। हमारे ये प्रयास आत्मनिर्भर भारत को वही स्फूर्ति देंगे जो स्फूर्ति बचपन में एक नई दुनिया रचती है। और अब दुनिया में हिंदुस्तान के खिलौनों का डंका बजाना ये हम सबका दायित्व है। हमें मिलकर का प्रयास करना है, निरंतर प्रयास करना है, नए नए रंग रूप के साथ प्रयास करना है, नई नई सोच, नए नए विज्ञान, नए नई टेक्नोलॉजी हमारे खिलौनों के साथ जोड़ते हुए करना है। और मुझे विश्वास है कि ये हमारा टॉय फेयर हमें उस दिशा में ले जाने के लिए एक बहुत मजबूत कदम के रूप में सिद्ध होगा। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। You were listening to Prime Minister's address at the launch of India Toy Fair 2021. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our website, newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsttalks@gmail.com. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
इसके अंतर्गत आज सुनिए विशेष कार्यक्रम खिलौनों की दुनिया, बाजार और हम। खिलौना बचपन का सबसे सहज साथी खिलौना। बचपन में शरारत न हो, खेल खिलौने न हो तो फिर कैसा बचपन। कभी वो साथी होता है तो कभी शिक्षक, तो कभी बचपन के मनोरंजन का साधन। कई बार बच्चे के विकास का सहयोगी भी होता है खिलौना। पहले बच्चे के साथी होते थे काठ और लकड़ी के बने खिलौने। बाद में इनके साथ साथ प्लास्टिक और लोहे के भी खिलौने आए। खिलौने की ये विकास यात्रा अब कंप्यूटर, मोबाइल फोन होते हुए तकनीक के नए सोपान तक पहुंच गई है। इतना कि खिलौने की दुनिया कुटीर से विशालकाय उद्योग में बदल गई है। दुनिया के कई देश तो इस उद्योग के सिरमौर बन गए हैं। अब खिलौने रोजगार का साधन भी बन गए हैं। देश में खिलौना सही मायने में भारतीय सभ्यता की विकास यात्रा के प्रतीक हैं। तकनीक और बढ़ती मांग ने इसमें तरक्की की जो राह दिखाई है, उसे ठीक से पहचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी से देश से संवाद करते हुए अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना उद्योग की ताकत से देश को परिचित कराया। उन्होंने खिलौना उद्योग को बड़ा हब बनाने के लिए इसके जानकारों से अपील की। टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूँ, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। देश को खिलौना उद्योग का हब बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने शनिवार 27 फरवरी से बड़ा आयोजन किया है। वर्चुअल स्तर पर आयोजित यह मेला 2 मार्च तक चलेगा। इस मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ये मेला देश के खिलौना उद्योग को नई दिशा देगा। ये पहला टॉय फेयर केवल एक व्यापारिक या आर्थिक कार्यक्रम भर नहीं है। ये कार्यक्रम देश की सदियों पुरानी खेल और उल्लास की संस्कृति को मजबूत करने की एक कड़ी है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम की प्रदर्शनी में कारीगरों और स्कूलों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी के लिए एक ऐसा मंच होने जा रहा है जहां आप खिलौनों के डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग तक चर्चा परिचर्चा भी करेंगे। इस मेले का उद्देश्य स्वदेशी खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना तो है ही है। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत इस उद्योग को प्रोत्साहित करना भी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने विदेशों से मंगाए जाते हैं। पिछले 7 दशकों में भारतीय कारीगरों की, भारतीय विरासत की जो उपेक्षा हुई, उसका परिणाम ये है कि भारत के बाजार से लेकर परिवार तक में विदेशी खिलौने भर गए हैं। और वो खिलौना सिर्फ नहीं आया है, एक विचार प्रवाह हमारे घर में घुस गया है। भारतीय बच्चे हमारे नायकों से ज्यादा बाहर के स्टार्स के बारे में बात करने लगे। बाहरी बाढ़ ने हमारे लोकल व्यापार की बड़ी मजबूत चेन भी तोड़ के रख दी है। कारीगर अपनी अगली पीढ़ी को अपना हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है।
हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित इस मेले की वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहले ही लोगों से इस मेले में हिस्सा लेने के लिए अपील कर चुके हैं। जो खिलौना का एक बहुत व्यापक मेला लगने वाला है, वो जरूर आए, वो अपने बच्चों के आइडियाज भी देखें, अपने अनुभव भी देखें, अपने कुछ सुझाव भी दें, जो 27 तारीख से लेकर के और 2 मार्च तक जो ये मेला लगने वाला है खिलौनों का, यहाँ जिसमें हमारी संस्कृति होगी। मेले में शामिल कोलकाता के रोहित बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना है, Over the last decade or so, there's a generation who stopped playing with toys. So my idea was if I can inculcate hobbies into adults, maybe children will see their parents pursuing a hobby and get back to playing with toys, rather than a whole generation who is now addicted to mobile phones. खिलौनों का पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया में भी विशेष महत्व है। इस वजह से इस मेले में नई शिक्षा नीति से जुड़े विषयों पर विशेष रूप से ज्ञान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन सत्रों में जानकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े विषयों पर केंद्रित व्याख्यान भी देने वाले हैं। इन सत्रों में सीखने की प्रक्रिया में खेलों की भूमिका, खेल और एक्टिविटी आधारित शिक्षा पर भी विशेष व्याख्यान होने जा रहे हैं। इनमें इस बात पर जोर दिया जाएगा कि खिलौनों के जरिए सीखने की प्रक्रिया को कैसे ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। इस बारे में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहती हैं, बच्चों को खेल और खिलौने से जोड़ने की एक कोशिश लेकर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुए थे। देश का पहला टॉय कथॉन आप सबके सम्मुख हमने राष्ट्र को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक शिक्षा विभाग में देश भर से 1,27,000 एंट्रीज आई। आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, साथ ही खेल और खिलौना उद्योग को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर एक राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। इस मेले में शिल्प प्रदर्शनी के साथ ही बच्चों के लिए विशेष रूप से खेल खिलौनों से जुड़ी क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली बार आयोजित हो रहे अपनी तरह के इस विशेष खिलौने मेले के जरिए सरकार की कोशिश है कि नीति निर्माताओं, खिलौना निर्माताओं और वितरकों, निवेशकों को एक मंच पर लाया जाए। मेले के जरिए उद्योग के जानकारों, कारीगरों, स्टार्टअप्स के साथ ही साथ खिलौनों के चहेते बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों को भी मंच देना है। भारतीय खिलौना उद्योग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। मेले की इस महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहते हैं, 1 वर्ष पहले ये कहानी शुरू हुई थी। लगभग जनवरी-फरवरी 2020 में कुछ कंप्लेंट्स आई कि टॉयज क्वालिटी बहुत खराब है और ये लगभग भारत की टॉय इंडस्ट्री को इसने खत्म कर दिया है। उस समय हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से टॉयज के सैंपल्स लेके उसकी टेस्टिंग करवाई और फरवरी में ये रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 30% जो प्लास्टिक के टॉयज भारत में इस्तेमाल हो रहे थे उस समय, उनका जो केमिकल्स के लेवल्स हैं या हेवी मेटल्स का लेवल है, वो जो एनवायरमेंटली सेफ लेवल है उससे ज्यादा है। अतीत में पारंपरिक भारतीय खिलौना उद्योग की अपनी विशेष पहचान रही है। तकनीक के बढ़ते दौर में चीन ने तकनीकी खिलौनों के साथ ही पारंपरिक भारतीय खिलौना बाजार में मजबूत पकड़ बना ली थी। इससे देशी खिलौना उद्योग परेशानी में था। सीमा पर चीन की हरकत के बाद केंद्र सरकार चीन के उत्पादों पर पाबंदी लगाने को मजबूर हो गई। उम्मीद की जा सकती है कि ये मेला सभ्यताओं के सहयोगी रहा भारतीय खिलौना उद्योग को परवान चढ़ाने का महत्वपूर्ण सोपान साबित होगा। उमेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार, आकाशवाणी समाचार। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम खिलौनों की दुनिया, बाजार और हम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
इसके अंतर्गत आज सुनिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री के संबोधन पर विशेष कार्यक्रम। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी लीडरशिप फोरम नवोन्मेषकों और तकनीक के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों का एक सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर के नवोन्मेषक और तकनीक के क्षेत्र में उद्योगों को संचालित करने वाले एक मंच पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने स्टार्टअप और नवोन्मेषकों से दुनिया भर में एक उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने वाले उत्पादों के निर्माण और इस दिशा में नए प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी से नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है और सरकार के साथ आम जनता को जोड़ने में इससे मदद मिली है। डिजिटल साक्षरता से सरकारी सुविधाएं और योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंची हैं। अपने युवा उद्यमियों को, हमारे स्टार्टअप्स को दुनिया में पैदा हुए नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए पूरी आजादी मिलनी चाहिए। सरकार को देश के नागरिकों पर, हमारे स्टार्टअप्स पर और इनोवेटर्स पर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे के साथ सेल्फ सर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं, उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। विशेष तौर पर डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सामान्य से सामान्य भारतीय को सशक्त किया है, सरकार से उसको जोड़ा है। आज डेटा को भी डेमोक्रेटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी भी प्रभावी हुई है। आज सैकड़ों सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी ऑनलाइन की जा रही है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधा के साथ साथ करप्शन से भी बड़ी राहत मिली है। हमारे फिनटेक प्रोडक्ट्स और यूपीआई जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की चर्चा तो आज पूरी दुनिया में है। वर्ल्ड बैंक समेत इसके सामर्थ्य की चर्चा कर रहे हैं। कैसे 3-4 साल के भीतर भीतर एक हैवीली कैश डिपेंडेंट सोसाइटी, उससे हम लेस कैश सोसाइटी की तरफ बढ़ चले हैं। जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन ज्यादा होता जा रहा है, काले धन के स्रोत उतने ही कम हो रहे हैं। जेम ट्रिनिटी और डीबीटी के कारण ही आज गरीब के हक की पाई पाई उस तक बिना किसी लीकेज के पहुंच पा रही है। साथियों, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता गुड गवर्नेंस की सबसे अहम शर्त होती है। यही बदलाव अब देश की शासन व्यवस्था में हो रहा है। यही कारण है कि हर सर्वे में भारत सरकार पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत से मजबूत हो रहा है। अब सरकारी कामकाज को सरकारी रजिस्ट्रों से बाहर निकालकर डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। प्रयास ये है कि सरकार और सरकारी विभाग की हर गतिविधि को देश का सामान्य नागरिक अपने फोन पर देख सके। उन्होंने कोविड-19 महामारी की रोकथाम में भारत द्वारा वैक्सीन बनाने और दूसरे देशों तक पहुंचाने के बारे में कहते हुए भारत के आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ते हुए कदमों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में आईटी सेक्टर के योगदान के बारे में भी कहा। जब हर सेक्टर कोरोना से प्रभावित था, तब भी आपने करीब 2% की ग्रोथ हासिल की। जब डी ग्रोथ की आशंकाएं जताई जा रही थी, तब भी अगर भारत की आईटी इंडस्ट्री अपने रेवेन्यू में $4 बिलियन और जोड़े तो ये सचमुच में प्रशंसनीय है और आप सारी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस दौरान लाखों नए रोजगार देकर आईटी इंडस्ट्री ने सिद्ध किया है कि वो भारत के विकास का मजबूत पिलर क्यों है। आज तमाम डेटा, हर इंडिकेटर ये दिखा रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री का ये ग्रोथ मोमेंटम ऐसे ही नई बुलंदियां छूने वाला है।
साथियों, नया भारत, हर भारतवासी प्रगति के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की इस भावना को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नए भारत से जुड़ी अपेक्षाएं जितनी सरकार से हैं, उतनी ही आपसे भी है, देश के प्राइवेट सेक्टर से भी है। हमारी सरकार की नीतियां और निर्णय गवाह है कि कैसे बीते वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रोच को बदल दिया है। वर्तमान समय में तकनीक के क्षेत्र को सुलभ बनाने और टेक्नोलॉजी उद्योगों के लिए गैर जरूरी नियमों और जटिलताओं को हटाने की जरूरत पर भी अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकाश डाला। उन्होंने हाल ही में उद्योगों के लिए मैपिंग और जियो स्पेशल डेटा के नए दिशा निर्देशों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे देश का टैग स्टार्टअप तंत्र और सशक्त होगा और इससे आत्मनिर्भर भारत के मिशन को बढ़ावा मिलेगा। टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। सुधारों का ये सिलसिला कोरोना काल में भी जारी रहा। कोरोना काल में ही अदर सर्विस प्रोवाइडर OSP गाइडलाइंस को जारी किया गया। इससे नई परिस्थितियों में आपके लिए काम करना आसान हुआ। आपके काम को कम से कम रुकावट का सामना करना पड़ा। आज भी 90% से ज्यादा लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो अपने मूल गांव से काम कर रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाला है। 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल करने का लाभ भी आपको होना शुरू हुआ है। साथियों, 2 दिन पहले ही एक और महत्वपूर्ण पॉलिसी रिफॉर्म किया गया है, जिसका आप सभी ने भी स्वागत किया है। मैप और जियो स्पेशल डेटा को कंट्रोल से मुक्त करके इसको इंडस्ट्री के लिए खोल देना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम है जो इस फोरम की थीम जो है, शेपिंग द फ्यूचर टवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल, मैं समझता हूं इसके साथ एक प्रकार से आपके समिट का पूर्वाश्रम का जो काम है वो सरकार ने कर दिया है। ये ऐसा कदम है जो हमारे टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को शाश्वत करने वाला है, सशक्त करने वाला है। ये ऐसा कदम है जो सिर्फ IT इंडस्ट्री नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत में व्यापक मिशन को मजबूत बनाता है। मुझे याद है, आप में से अनेक एंटरप्रेन्योर्स मैप्स और जियो स्पेशल डेटा से जुड़े रिस्ट्रिक्शंस और रेड टेप से जुड़ी बातें अलग अलग फोरम पर रखते रहे हैं। ये निर्णय सिर्फ टेक्नोलॉजी के दायरे का नहीं है। ये निर्णय सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा नहीं है। ये निर्णय सिर्फ सरकार एक नीति नियमों से हट गए ऐसा नहीं है। ये निर्णय भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत को विश्वास है कब ये निर्णय करने के बाद भी हम देश को सुरक्षित भी रख पाएंगे और देश के नौजवानों को विश्व के अंदर अपना लोहा मनवाने के लिए अवसर भी देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी नई नीतियों से प्रक्रियाओं को सरल बना रही है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन से सरकार एक सरल और प्रभावी तंत्र बनाने के लिए काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कमल कुमार प्रजापति। अभी आप सुन रहे थे नेस्कॉम टेक्नोलॉजी और लीडरशिप फोरम में प्रधानमंत्री के संबोधन पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com। ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने पर विशेष कार्यक्रम सुरलय के सम्राट।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। पिछली सदी के 80 के दशक के हर गुजरती याद के साथ जैसे जीवंत हो जाता है ये गीत। सागर में मिले। तब भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने का जैसे प्रतीक बन गई थी ये आवाज। हल्के हल्के। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को टेलीविजन के पर्दे पर उतारने वाले दूरदर्शन के सुनहले दिनों की थाती है बादलों सी गरजती लरजती ये लय। दूरदर्शन के सुनहले पर्दे पर रोजाना कई कई बार गूंजने वाली ये आवाज तमाम भाषाओं के सिने कलाकारों से सजा था ये देश राग। लेकिन उन सबके स्टारडम के बीच छा गई थी भीमसेन जोशी की गुरु गंभीर आवाज। हालत ऐसी रही जिन्हें शास्त्रीय संगीत की समझ भी नहीं थी, जो उसमें दिलचस्पी भी नहीं रखते थे, वे भी जोशी जी के गुरु गंभीर स्वर को सुनकर अचंभित रह गए। किराना घराने के गायक भीमसेन जोशी की इसी विशेषता को याद कर रही हैं इसी घराने की ही प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे। किराना घराने की चौखट में रहकर हम दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता निकाला। आवाज से लेकर संगीत प्रस्तुति के हर पहलू में हमने थोड़े थोड़े बदलाव लाए। भीमसेन जी की भीमसेनी शैली श्रोताओं ने बहुत पसंद की। अच्छी दमसास की वजह से उनकी गूंज भरी आवाज, उस आवाज में जबरदस्त मास अपील है। पहले सांस से ही वो श्रोताओं को अपनी तरफ खींच लेते थे। आलापी में शांत प्रसन्न सुरीली बढ़त, बिजली जैसी ताने, कर्नाटक से होने के कारण उनके आवाज में कर्नाटक की झलक थी। वो बहुत मीठी लगती थी। 7 दशक से अधिक समय तक गूंजते रहे इस स्वर के पीछे रही लंबी साधना और संगीत के प्रति अद्भुत अनुराग। 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के धारवाड़ के छोटे से कस्बे रोन में जन्मे भीमसेन जोशी को बेहद छोटी उम्र में ही संगीत के प्रति लगाव हो गया। बचपन में ये मोह इतना था कि वे लोक गायकों और मंडलियों के पीछे भागे चले जाते थे। इस यात्रा में संगीत सुनते मीलों तक चलने के बाद थककर वे कहीं भी बेसुध पड़ जाते थे। कहा जा सकता है कि इन्हीं क्षणों में जैसे सुर चुपके से उनकी आत्मा में बस गया, जिसे उन्होंने वर्षों की साधना से इतना सुघड़ बनाया कि दुनिया उसकी दीवानी हो गई। भीमसेन जोशी को 8 वर्षों तक संगत देने वाले पंडित सुरेश तलवलकर कहते हैं, मैंने अनेकों कलाकारों को पास से देखा, उनके साथ बजाने का मौका मिला, लेकिन इतने प्योरिटी से अपनी कला को प्रेजेंट करने वाले मैंने कलाकार कहीं देखे नहीं। बहुत कमाल के लोग कि इतने प्योरिटी से उन्होंने अपनी कला को पेश किया और लोगों तक पहुंचाया। लोगों के दिल में उनके सुर बस गए। संगीत के प्रति मोह की वजह से भीमसेन जोशी महज 11 साल की उम्र में गुरु की खोज में घर से निकल पड़े। इस दौरान बीजापुर, पुणे, ग्वालियर, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ और रामपुर की खाक छानी, लेकिन दिल को छू लेने वाले गुरु की तलाश पूरी नहीं हुई। संगीत सरोवर में उतरने की तैयारी में वे भटक ही रहे थे कि पिता ने 3 साल बाद उन्हें जालंधर से खोज निकाला। वापसी के बाद गुरु की तलाश घर में ही पूरी हुई, जब किराना घराने की बेजोड़ गायक सवाई गंधर्व ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। बेटे जयंत जोशी उनकी इस साधना को यूं याद करते हैं। 1970 के दशक की बात है। मैं उनके साथ कलकत्ता गया हुआ था। दोपहर में हम कलकत्ता एयरपोर्ट उतरे। वहां शाम को 6 बजे एक जगह गाए, फिर 8 बजे दूसरी जगह, रात को 12 बजे तीसरी जगह और चौथा प्रोग्राम सुबह 5 बजे। सब जगह संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ थी और सब जगह पिताजी के गाने ने सबको खुश कर दिया। सुबह की फ्लाइट से हम बम्बई वापस आ गए। शाम को रविंद्र नाट्य मंदिर में 4 घंटे बड़ी तबीयत से गाना गाया।
जब भैरवी गाकर वो उठे तब ऑडिटोरियम में शांति थी और लोगों के साथ मेरे भी आंखों में आंसू थे। शास्त्रीय संगीत के इस सम्राट को संगीत सीखने की ललक तब बढ़ी जब उन्होंने उस्ताद अब्दुल करीम खान की ठुमरी सुनी। संगीत की अनवरत यात्रा जो चली तो पूरी जिंदगी अनवरत जारी रही। न सिर्फ किराना घराने की प्रतिष्ठा में उन्होंने 4 चांद लगाए, बल्कि उसे अपने योग्य शिष्यों के जरिए आगे भी बढ़ाया। उनके शिष्य पंडित आनंद भाटे कहते हैं, उनकी तालीम इस प्रकार की थी कि उन्होंने मुझे राग संगीत तो सिखाया ही, किराना घराने की गायकी सिखाई, लेकिन उसके अतिरिक्त वॉइस कल्चर, मंत्र सप्तक और ओंकार साधना ये भी सिखाई। महफिल में कैसे गाना चाहिए, राग कैसे चुनना चाहिए, लय कैसी रखनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स की तालीम वो देते थे। मैं ऐसा मानता हूं कि जो वो जितने बड़े परफॉर्मर थे उतने ही बड़े गुरु थे। संगीत की दुनिया में अपनी अनूठी आवाज से दशकों तक देश का नाम रोशन करते रहे भीमसेन जोशी के बारे में संगीत के जानकार अनूठी राय रखते हैं। उनके मुताबिक पंडित जोशी भले ही किराना घराने के गायक रहे, लेकिन उनके सुर में दूसरे घरानों का भी असर है। उनके तराशे हुए स्वर हिंदुस्तानी गायकी के श्रेष्ठ मिश्रण हैं। जानकार मानते हैं जोशी जी ऐसे विलक्षण गायक रहे जो अपने सुरों की प्रभा से शास्त्रीय संगीत की सीमाओं के पार उतर जाते हैं और हर वर्ग के श्रोता को विशेष भावभूमि पर ले जाकर छोड़ देते हैं। उन्हें तबले पर संगत देते रहे भरत कामत कहते हैं, वो हमेशा अपने शिष्यों को कहते थे कि रियाज करते समय स्पीड के पीछे मत भागना चाहिए, बल्कि उसके परिणाम की ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। हर एक कलाकार एक अच्छा चोर होना चाहिए, दूसरे कलाकार की अच्छी बातें चुराकर अपने गायन में ढालकर अपनी खुद की गायकी बनाकर अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। पंडित जी ने हर 10 साल के बाद अपने गायन शैली में अभ्यासपूर्ण बदलाव किए थे। 1980 के बाद उन्होंने अपने गायन में जयपुर शैली की विशेषताएं अपने खुद के ढंग से अपने गायन में उसका मिश्रण किया था। पंडित भीमसेन जोशी की आवाज को कुछ लोग दैवीय भी मानते हैं। उनकी इस प्रतिभा को पंडित जसराज भी अपने तरीके से स्वीकार करते हैं। जोशी जी के शिष्य पंडित आनंद देशमुख उनकी इस प्रतिभा को याद करते हुए कहते हैं, स्वरमंच पर आने के बाद उनके सामने एक ही लक्ष्य हुआ करता था, उन स्वर्गीय सुरों की आराधना। न केवल कलाकार बल्कि श्रोताओं के प्रति भी उनकी नम्रता और आदर भाव बहुत ही प्रशंसनीय है। पंडित भीमसेन जोशी की उम्र के 75 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में उनका एक बहुत बड़ा सत्कार समारोह आयोजित किया गया। उस वक्त पंडित जसराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हम सभी कलाकार पंडित भीमसेन जोशी के सुरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम जब वो दैवी सुरों तक के करीब जाते हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि वो स्वर हमसे मीलों तक दूर निकल चुके हैं। ख्याल गायन में जोशी जी की रेंज जहां समुद्र की तरह विशाल नजर आती है, वहीं भावगीत, ठुमरी, भजन और अभंग गायन में वे हर बार सहज और सरल नजर आते हैं। संगीत सलिला जिस दिल में बहती हो वो सहज होगा ही। उनकी सहजता को उनकी शिष्या और पड़ोसी रही मीना फातर पेकर याद करते हुए कहती हैं, For me, he is more than that. He is a family and he is our Vincent Kaka. There are very fond memories of Vincent Kaka of my childhood. But to name few of them, when we were kids, Vincent Kaka used to visit my grandmother's house, Srimati Hirabai Badodekar and Srimati Saraswati Bai Rani, the legendary singers of Kirana Gharana, very often with Dr. Nana Saheb Deshpande, the son-in-law of Savai Gandharvaji. They used to have lunch or dinner at our place, and then after that we used to have small Sangeet Mehfils, which were very, very informal. It was altogether a very different atmosphere in those days. As a kid, I never understood the importance of getting to hear him so closely, but directly or indirectly, those heavenly notes were getting imbibed on my brain, and that motivated me to pursue this career further. पंडित जी की आवाज का ये जादू ही था कि उन्हें देश विदेश के तमाम सम्मान मिले। नवंबर 2008 में
उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत रत्न। इस सम्मान के जरिए देश ने जैसे पीड़ा और आनंद मिश्रित इस सुर को प्रमाण ही दे दिया। कार्यक्रमों में पंडित जोशी के राग श्रोताओं पर कैसा प्रभाव डालते थे, इसे याद करते हुए उनकी बेटी शुभा मुलगुंद भावुक हो जाती हैं। आज मेरे पिताजी की जन्म शताब्दी का प्रारंभ हो रहा है। बचपन से ही उनका गाना जैसे चांद, सूरज, हवा, पानी रहते हैं, वैसे मेरी जिंदगी में है। वही संस्कार और वही सब वातावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है और उस गाने के साथ ही हम बड़े हुए। और मेरी माताजी भी बहुत रियाज किया करती थी और वो तो उनकी शिष्या ही थी। आज तक मैं भी रोज उनका कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ और वो मेरे मन में गूंजता ही रहता है। उनके साथ मैंने बहुत प्रवास किया है, उनकी महफिलों में तानपुरे पे संगत की है, देश विदेशों में उनके साथ गई हूँ और जो उनको लोगों का प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनके गाने का असर कितना लोगों पर होता था, वो भी मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे याद है बचपन में जब कुछ भी समझ में नहीं आता था, तब एक महफिल थी, उसमें बाद में पता चला वो जोगिया गा रहे थे, तो सब श्रोता जैसे स्तब्ध से हो गए थे। कई लोगों के आंखों में आंसू थे। वो नजारा आज भी मुझे याद आता है और बाद में बड़े होने पर ये मालूम हो गया कि वो सुर का असर था। उनके सुर में इतनी सच्चाई थी और रियाज से एक सिद्धि आई थी, तो वो उसका असर लोगों पर होता ही था। वो डायरेक्ट मन में और हृदय में घुस जाता था वो सुर। अपनी गायकी के जरिए पंडित भीमसेन जोशी ने जो वितान रचा, उसका दूसरा जोड़ भारतीय संगीत में फिलहाल नहीं दिखता। जिस उत्साह से तोड़ी और कल्याण जैसे बड़े रागों को वे प्रस्तुत करते रहे, उसी सहजता से राग भूप और अभोगी की स्वरधारा में भी डुबकी लगाते रहे। पंडित जोशी के शिष्य उपेंद्र भट्ट कहते हैं, गुरुजी ने आकाशवाणी के लिए बहुत ही प्राधान्य दिया है। उसका कारण ये है कि जब भी प्रोग्राम नहीं मिलते थे, तब एक एक प्रोग्राम मिलने के लिए हर एक कलाकार को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। तब वही गाना आकाशवाणी पर गाया बहुत ही जल्द लोगों तक पहुंचा सकते थे और उतनी ताकत आकाशवाणी के पास है। और ये समझकर सभी कलाकारों ने उस वक्त आकाशवाणी को बहुत ही प्राधान्य दिया। और आकाशवाणी के बारे में बोलने का है तो बहुत ही अच्छी ताकत ये है, सुबह 5 बजे को शुरू हुआ तो देर रात तक 2 बजे 3 बजे तक चालू रहता है। पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना मैं बचपन से वो आकाशवाणी में सुन के आया था, वही सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। तो उस वक्त से मैं यानी 1956 से तानपुरा पर साथ करने का मौका मिला मुझे। तो उस वक्त से मेरा आज तक मैंने उनको बहुत ही साथ की है और मुझे उन्होंने गाना भी सिखाया। 80 साल से मैं पूना में रहने को आया। उन्होंने खुद बोला है मुझे मंगलूर से, मैं मंगलूर का था और उन्होंने आकाशवाणी के लिए हिंदी, मराठी और कन्नड़, उसमें कन्नड़ गाना और कन्नड़ भजन, कन्नड़ भावगीत, कन्नड़ अभंग, पुरंदरदास, कनकदास, दरा बेंद्रे का भावगीत और देशभक्ति पर गीत भी गाए हैं। 25 जनवरी 2011 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था, भारत का ये रत्न सदा के लिए उस दुनिया की ओर कूच कर गया जहां से लौटना संभव नहीं। राम का गुणगान करी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया संगीत की अनूठी विरासत, जिसे जब तक सुर रहेंगे भुला पाना असंभव होगा। अभी आप सुन रहे थे भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने पर विशेष कार्यक्रम सुरलय के सम्राट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।